very good morning. So, let us start with this lecture number 6. We have so far studied about the polymerization and about the basic process, how the AM process is basically being done, means the classification of the additive manufacturing, about the history, about the introduction. Now, we are moving towards the last phase of this additive manufacturing process, that is about the sintering, melting, extrusion and the powder binding bonding. Okay, so let us start with this sintering and melting. What is basically happen in the sintering and melting, why, where we are using this extrusion, where we are using this powder binding bonding process. Now, before going for this module, we will just see the outline, that how this basically the lecture is being scheduled. So, the first is basically sintering and melting. We will just study about the sintering and melting. Second is the extrusion. In that extrusion, we will just talk about the fused layer modeling. Third one is the powder binding bonding. Over here, we will just talk about the 3-dimensional printing of the Jet Corporation, Pro Metals and the Voxel Jet. Okay. So, start with this sintering and melting. If we just talk about this sintering and melting, so as the name is there, sintering, okay, means you are not completely melting your you can say the powder or any raw material. Okay, you are just partially melting it, and after partial melting you have to go for some curing process, as I have already told you in the polymerization, that we used to go for the some curing in the means after you can just see that हम लोगों ने जो partial melting जो करी है, चाहे किसी भी मटेरियल के लिए वो हो, बट हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग partial melting करते हैं तो हम we just need some curing in that. Okay, तो the selective laser melting and this resolidification of the thermoplastic powder is called the laser sintering, laser fusing or the laser melting. Okay, so basically thermoplastic powders की यहाँ बात कर रहे हैं. Okay, तो thermoplastic powder means we are talking about the polymers. Okay, लेकिन आपकी जो melting है वो आपकी किस में भी यूज होती है, आपकी यूज होती है मेटल्स के केस में भी यूज होती है. Okay, and if an electron beam is as a source, the process is electron beam melting. अगर आपका इलेक्ट्रॉन बीम एक तरह से सोर्स की तरह यूज हो रहा है या फिर लेजर बीम आपका यूज सोर्स की तरह यूज होता है, तो आप उसको नाम देते हैं लेजर बीम मेल्टिंग और द इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग. ओके, नाउ sintering process is a general do not this basically it is basically a general process that either require neither bases to build the parts or nor the supports to link the parts to the bases, because the loose powder surrounds and stabilize the part during the build. Okay, तो sintering process basically इस टाइप का है कि यहाँ पे you just require neither the bases, आपको ना तो किसी बेस की जरूरत पड़ती है, okay, और ना ही कोई आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है टू लिंक द पार्ट्स टू द बेसिस. ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट के मेल्टिंग की, अगर हम लोग प्रॉपर मेल्टिंग की बात करें, अगर हम लोग मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स के केसेस में यू जस्ट रिक्वायर्ड अ बेसिस ओवर देयर, आपको सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे. ओके, आपको एक बेस के साथ उसकी बेसिकली कैसे उसको ज्वाइन करना है वो भी आपको रिक्वायरमेंट है, और आपको सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट है बेस से आपके जो बिल्ड के जो ओवरहैंग्स हैं. ओके, टू प्रिवेंट द पार्ट फ्रॉम वार्पिंग ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस. ओके, ताकि आपका पार्ट जो है वो वार्प ना हो. ओके, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं बिकॉज ऑफ द रेजिडुअल स्ट्रेसेस, हमारे जो पार्ट हैं इन दी बेसिकली इन द केसेस ऑफ द मेटल्स, वो क्या होते हैं, वार्प हो जाते हैं. ओके, बिकॉज रेजिडुअल स्ट्रेसेस कहाँ से आती हैं, रेजिडुअल स्ट्रेसेस आर बेसिकली बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू दिस यू कैन से अगेन हीटिंग एंड द कूलिंग प्रोसेस. जो आपका ये हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस बार बार होता है इन दिस मेटल के केसेस में. जो अगर हम लोग बात करें तो एक बार आपकी लेज़र पड़ी तो वो आपके बेसिकली पाउडर को हीट कर रहा है, फिर वो कूल हो रहा है, फिर वो हीट कर रहा है, फिर वो कूल कर रहा है. तो जो साइकिल है हीटिंग एंड कूलिंग की, रैपिड सॉलिडिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड तो ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी रेजिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट कर देता है पार्ट में. ओके, तो दैट्स वाई वी जस्ट रिक्वायर्ड के आपका जो पार्ट है वो प्रॉपरली बेस के साथ अटैच हो. ओके, वो प्रॉपरली उसका यू कैन से उसका बॉन्डिंग जो है बेस के साथ बहुत ही प्रॉपर हो. ओके, और आपके सपोर्ट्स का भी प्रॉपर बॉन्डिंग हो, सो दैट वी कैन अवॉइड दिस वार्पिंग. ओके, so let us start with this laser sintering. Okay, SLS, we just named that is the SLS, selective laser sintering. So the laser beam contour each layer and the contour data are obtained from the slice data of each layer and directed by the scanner. Okay, जैसा कि हमारा SLM में हम लोग पढ़ा था, पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस में भी हम लोगों ने पढ़ा था
कि वो बिल्कुल सेम ही प्रोसेस है, बट यहाँ पे हम लोग सिंटरिंग कर रहे हैं. ओके, सो बीम टचेस द सरफेस एंड पाउडर पार्टिकल आर लोकली मेल्टेड. अगर सपोज करिए ये आपके पाउडर के पार्टिकल हैं, इफ दिस इज योर पाउडर पार्टिकल, तो यू विल सी कि दे आर जस्ट लोकली मेल्टेड फ्रॉम हियर. ओके, दे आर नॉट कंप्लीटली मेल्टेड. फिर वो उनके बीच बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, तो ये यहाँ पे सॉलिड पार्ट बेसिकली ये रह जाता है. ओके, सो दे आर मेल्टेड, यू कैन से कि उनकी जो सरफेस है वहां से वो उसको हम लोग मेल्ट कर रहे हैं. ओके, सो वाइल द बीम ट्रेवल्स फर्दर द मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई बाय द थर्मल कंडक्टिविटी इनटू द सराउंडिंग पाउडर एंड फाइनली अ सॉलिड लेयर इज अचीव्ड इन दिस सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग प्रोसेस. ओके, सिंटरिंग प्रोसेस SLS इज बेसिकली बीइंग यूज्ड फॉर द पॉलीमर. हम लोग इसको ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो पॉलीमर्स के लिए यूज़ करते हैं. ओके, प्लास्टिक्स के लिए यूज़ करते हैं मेनली. ओके, बिकॉज नाउअडेज वी आर हैविंग this selective laser melting direct energy deposition process for the metals and the ceramics. To deposit the parts of the metal and the ceramics, we are having this direct energy deposition process and the selective laser melting. Okay, तो mainly हम लोग जो SLS का use करते हैं वो plastic part के लिए use करते हैं. Okay, so the sintered parts made from the plastic shows properties close to the plastic injection molded parts. तो जो इसकी properties हैं आप देखोगे कि जो plastic injection से जो आप part बनाते हो उसी के basically comparable हैं. Okay, so they are either used as a prototype or as a final part. आप उसको या तो prototype के लिए भी use कर सकते हैं और final part के लिए भी use कर सकते हैं. You can just see these parts over here. These are the gas manifolds over here. Okay, so you can just see कि जो ये पार्ट है वो कंपेरेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है आपको. मेटल इंजेक्शन जो आप मोल्डिंग से बनाते हैं पार्ट. ओके, नाउ इफ वी जस्ट टॉक अबाउट दिस सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग की अगर हम लोग बात करें. ओके, सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग वी हैव स्टडीड इन दिस इन द लेक्चर नंबर 2. हम लोगों ने पढ़ा था कि अबाउट द पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस. तो दिस इज बेसिकली द सेम प्रोसेस, सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, एंड इट वाज डेवलप्ड इन पर्टिकुलर टू द प्रोसेस मेटल पार्ट्स that need to be very dense. तो जो आपके पार्ट हैं वो dense होते हैं इसमें basically. You can just see the figure 99% dense, greater than 99% dense. Okay, means you are having very less number of the voids that are, or you can say the open pores that are present in these parts, because आप क्या कर रहे हैं completely उसको melt कर दे रहे हैं. Okay, so these pores and the you can say the voids are basically due to the presence of the oxygen entrapment during the build process. तो जो आपको वहाँ पे ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहती है उसके एंट्रैपमेंट की वजह से कुछ कुछ voids वहाँ पे आ जाते हैं. अदरवाइज दिस इज द you can say the 99.9% dense part आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. Okay, and it produces a local selective melt pool that results in a fully dense part after the re-solidification. आप उसका अगर re-solidification कर दें तो you get the complete dense part over here, and the process is generally called the selective laser melting, and there are some proprietary names as well as cuisings. Okay, as well as you can just say जो नाम यहाँ पे basically जो दिया गया है cuising, which is an acronym of the cladding and the fusing. Okay, तो cuising जो word basically जो दिया गया है वो acronym है किसका, cladding और fusing का. ओके, मतलब क्लैड मतलब एक के ऊपर एक की बेसिकली आप क्लैड कर रहे हैं. ओके, और फ्यूजिंग मतलब आप मेटल को अपने को फ्यूज कर रहे हो. ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम मटेरियल प्रोसेसिंग रिक्वायर अ वैक्यूम. मैंने आपको पहले बताया था इन दिस पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस में कि इसमें एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग में कि इसको एक वैक्यूम की रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा. ओके, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट. और पार्ट जो भी आप बना रहे हैं, जिस मटेरियल को आप बेसिकली चूज कर रहे हैं वो कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए. ओके, सो दिस इज आर द लिमिटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग. ओके, और completely sealed construction is needed in this, and the electron beam penetrates very deep, and setup allows a very high scanning speed that can be used for preheating as well. Therefore the process is very fast and work at elevated temperature. तो जो प्रोसेस है बहुत फास्ट प्रोसेस है और एलिवेटेड टेम्परेचर पे आप इसको वर्क कर सकते हो, आप वैक्यूम में बेसिकली यहाँ पे काम कर रहे हो. ओके, सो एज अ रिजल्ट स्ट्रेसेस एंड डिस्टॉर्शन आर रिड्यूस्ड एंड वेरी गुड मटेरियल प्रॉपर्टी कैन बी अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनी. जो इसकी बेसिकली कंपनी है, जो मेन लीडर्स हैं इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग के आरकेम, दे विल से कि जो स्ट्रेस और डिस्टॉर्शन बेसिकली जो यहाँ पे पार्ट्स में होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं. ओके, बिकॉज यू आर हैविंग वेरी हाई
you can say the scanning of this electron beam over here. तो होता क्या है कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस जो हैं उसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग को. अदरवाइज दिस इज़ वन ऑफ द यू कैन से the finest technology we have to build the 3D component of the metals. Okay. Now we are moving to the extrusion fused layer modeling. Okay. तो यहाँ extrusion की बात कर रहे हैं हम लोग. तो extrusion मतलब we are just now talking about the FDM process. Okay. जो मैंने आपको यूनिट नंबर सॉरी लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि FDM इज बेसिकली द एक्सट्रूजन बेस्ड प्रोसेस. तो कुछ उसी टाइप का बेसिकली ये प्रोसेस है. ओके, फ्यूज लेयर मॉडलिंग. बट हम लोगों ने इसको फिर डिवाइड कर दिया बहुत सारे पार्ट्स में. तो किसी को नाम दिया, किसी कंपनी ने दैट इट इज़ द FDM प्रोसेस. ओके, किसने कुछ नाम दिया. दे हैव गिवन द नेम अकॉर्डिंग टू देयर technology. Okay, so the layer by layer deposition of the pastry strings is called the fused layer modeling. Okay, the process work with the prefabricated thermoplastic material and colored parts are obtained when the color material used. तो जब आप इसमें डिफरेंट कलर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है. एंड द पार्ट नीड द सपोर्ट ड्यूरिंग द बिल्ड. इसमें आपको बेसिकली आपको जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी जब आप किसी बिल्ड को बना रहे हो. एज यू कैन सी ओवर हियर दैट दिस इज योर वायर. ओके, और यहाँ पे आपके these are basically the you can say the rollers जो इसको basically feed करेंगे into the nozzle and this nozzle is the heated nozzle. okay, जो आपके जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे पेस्ट्री स्ट्रिंग्स, तो पेस्ट्री स्ट्रिंग्स की फॉर्म में ये बेसिकली यहाँ पे डिपॉजिट करता है. ओके, एक्सट्रूजन की अगर हम लोग बात करें तो यू कैन जस्ट सी दैट जो अभी हम लोग पहले देख रहे थे, तो दिस इज बेसिकली योर हीटेड नोजल ओवर हेयर और ये यहाँ पे बेसिकली आपको डिपॉजिट करती हुई नजर आ रही है. एंड दीज आर द यू कैन से जिस पे बेसिकली दीज आर द बेसिकली द गाइड यू कैन से गाइड चैनल जिस पे कि आपकी जो नोजल है वो मूव करती है इन दी एक्स और वाई डायरेक्शन. ओके, सो मैनी ऑफ द सो कॉल्ड फैबर वर्क विद द सिंप्लीफाइड एक्सट्रूजन प्रोसेस, सम ऑफ देम इवन विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग द सपोर्ट्स. तो कुछ फैबर्स बने. फैबर्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात करी कि फैबर्स क्या होते हैं, जो हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए बेसिकली बनाते हैं 3D प्रिंटर्स. ओके, सो द मोस्ट पॉपुलर वन आर दी BFV 3000 फैबर 1 रैप. So this section of the industry is growing rapidly, जो अपने आप ही बेसिकली इस एक्सट्रूजन प्रोसेस का यूज करके डेवलप कर रहे हैं फैबर्स को. ओके, नाउ यू कैन जस्ट सी दैट अबाउट दिस एक्सट्रूजन फ्यूज्ड लेयर मॉडलिंग कैसे होती है. पहले भी आपको इसका बेसिकली वीडियो दिखाई हुई है. तो यू कैन जस्ट सी कि लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग कैसे यहाँ पे होती है, कैसे वायर्स बेसिकली इन दी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो कलर में आपको वायर दिख रहे हैं. वन इज इन द ग्रीन फॉर्म एंड वन इज इन द रेड फॉर्म. तो जो आपको जिस कलर का बेसिकली आपको मटेरियल चाहिए, जिस कलर को आप बेसिकली शो करना चाह रहे हो अपने प्रोटोटाइप में या फिर अपने एंड यूज प्रोडक्ट में, आप लोग यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द कलर्स ऑफ द वायर. ओके, नाउ द FDM machine that consists of a heated build chamber equipped with an extrusion head and the build platform. Okay, as you can see the given that is approximately 80 degrees Celsius for the ABS plastic processing. Okay, and this extrusion head provides the material deposition in the XY area according to the contour of the actual layer. Okay, and this is a plotter type device. प्लॉट जैसे हम लोग करते हैं, XY प्लॉटिंग जैसे हम लोग करते हैं, उसी टाइप का बेसिकली इसका प्लॉटर होता है, जिसमें आपको होता है कि इसमें गाइडिंग बेसिकली यू कैन से चैनल्स हैं जिस पे आप बेसिकली गाइड कर सकते हो कि एक्स में कहाँ मूवमेंट करना है, वाई में कहाँ मूवमेंट करना है. ओके, सो द बिल्ड मटेरियल इज अ prefabricated filament that is wound up and stored in a cartridge from which it is continuously fed to the extrusion head. ओके, तो एक आपके पास एक कार्ट्रिज होती है. कार्ट्रिज मीन्स यू आर हैविंग अ स्पूल जिसमें आप अपने वायर्स को यू कैन से स्टोर कर सकते हैं और उसको वाउंड करके आप यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, फॉर फीडिंग अप दैट वायर इनटू द हीटिंग नोजल. ओके, the cartridge has built-in sensor that communicates with the material management system of the machine. तो आपकी जो कार्ट्रिज है उसमें क्या बेसिकली आप सेंसर लगा देते हैं, बिल्ट इन सेंसर उसमें रहते हैं जो कि आपको कितना मटेरियल बेसिकली वहाँ पे देना है. तो मटेरियल मैनेजमेंट के हिसाब से वो आपको बताएगा कि कितना मटेरियल आपका जाना चाहिए और उस हिसाब से वो बेसिकली उसको मटेरियल को फेड कराते जाते हैं. सो इन द हेड द मटेरियल इट इज partly molten by the electric heating system and extruded through the nozzle that define the string diameter that nearly equals to the layer thickness.
ठीक है। तो जो आपकी स्ट्रिंग की जो डायमीटर दैट इज नियरली इक्वल टू द लेयर थिकनेस, तो आप वहां से अपनी लेयर थिकनेस को डिसाइड कर सकते हो। ओके, usually string diameter range from 0.1 mm to the 0.25 mm and the platform moves in the z direction, okay, and defines the layer thickness as the material is squeezed on top of the partly finished part. Okay. So, the process needs support. They are made by the second nozzle that extruded another plastic support material simultaneously with the build material. तो होता क्या है कि आपका जो ये प्रोसेस है इसमें भी सपोर्ट की आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोर्ट के लिए आप एक अलग मटेरियल चूज कर लें, ओके, और अगर आपको यू जस्ट रिक्वायर्ड के बिल्ड के लिए आपको एक अलग मटेरियल चाहिए तो आप यहाँ पे बहुत कलर के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप मल्टी नोजल बेसिकली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दे आर मेड बाय द सेकंड नोजल, ओके। तो मल्टी नोजल अभी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं दैट एक्सट्रूडेड द अनदर प्लास्टिक मटेरियल फ्रॉम द अदर यू कैन सी द नोजल्स, ओके। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ द कलर यूज किए हैं, ओके। एज यू कैन सी दैट दे हैव यूज्ड दिस ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, okay. So this black color, so these are basically being developed, these kind of the you can say the prototypes are being developed by using the multi nozzle FDM process, okay, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी नोजल हैं, बहुत सारे कलर हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट विल डिपेंड कि आप उसका मटेरियल को भी अलग अलग कर सकते हैं, ओके। So there are the many plastic materials available for the FDM, including engineering materials such as ABS, PC ABS, and especially great for the medical modeling. Okay, so there is a big variety of the colors available, amongst it even translucent, black and the white qualities. तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास बहुत सारी कलर के ऑप्शन हैं, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे यू कैन से कि मटेरियल के ऑप्शन हैं इन दिस FDM प्रोसेस, ओके। बट द यहाँ पे भी आपको आप देख सकते होंगे कि दैट आपका ओरिएंटेशन बहुत मेन पार्ट यहाँ पे प्ले करता है, क्योंकि आप ओरिएंटेशन जो रखना है आपको वो इस हिसाब से रखना है कि आपके जो सपोर्ट मटेरियल है वो कम से कम लगे, ओके। आपका जो बिल्ड है वो इजीली बेसिकली आप उसको फॉर्म कर पाओ, ओके। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि आपने इसको बेसिकली एक डायरेक्शन बनाया। सपोज आई एम जस्ट टेकिंग ओवर हेयर द एक्सिस, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस ले लूँ, दिस इज योर x axis and this is your y axis and we just call it as a 0 degree, we just call it as a 45 degree, we just call it as a 90 degree। तो आप देख सकते हैं कि इस पार्ट को हम लोग 90 डिग्री में भी बना सकते थे या 0 डिग्री में भी बना सकते थे। बट 0 डिग्री में अगर आप इसको बनाते तो आप देखते कि यहाँ पे आपको ज़्यादा सपोर्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती, सपोर्ट इज़ वेरी हाई ओवर है, ओके। और अगर यहाँ पे बनाते तो इट में भी पॉसिबल कि यहाँ पे भी आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम पड़ती, बट इन्होंने क्या है 45 में इसको बनाया है, ओके। सो मटेरियल का जो ओरिएंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि कैसे आपको बेसिकली उसको ओरिएंट करना है, ओके। इवन इन द एक्स दिस 0 45 90 डिग्री डायरेक्शन ऑल्सो एंड ऑल्सो इन द जीरो डायरेक्शन, आप जीरो डायरेक्शन में भी आप इसका ओरिएंटेशन देख सकते हैं। मतलब इस प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन। एक प्लेन में भी आपको ओरिएंटेशन देखना पड़ता है और अगर हम लोग बात करें ओवर दिस तो इसमें भी आपको बेसिकली इसका ओरिएंटेशन चेक करना पड़ता है, ओके। नाउ FDM part shows the typical surface structure that result from the extrusion process. So according to the layer thickness and the orientation of the part in the build chambers, these textures are more or less visible, okay. So positioning, orientation in the build chamber has a big influence on the appearance of the part, जैसे मैं आपको बताया, and the post processing require the removal of the support which can be done manually or by using the special washing device। या तो हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, ओके। यूजिंग द केमिकल्स भी हम लोग यूज़ करते हैं कि ताकि आपकी जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे रिमूव हो जाए। नाउ पाउडर बाइंडिंग बॉन्डिंग, दैट इज द 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग ड्रॉप ऑन पाउडर प्रोसेस। तो जो लेयर बाय लेयर बॉन्डिंग होती है पाउडर पार्टिकल की, इसमें इन द रेंज ऑफ 50 माइक्रोमीटर बाय द सेलेक्टिवली इंजेक्टिंग अ लिक्विड बाइंडर into the top area of the powder bed is called the 3-dimensional printing, okay। So this process is also called the drop on the powder process, okay, and this process was developed and registered by the MIT USA in early 1990s and licensed to the Z Corporation। तो उन्होंने डेवलप किया MIT USA वालों ने और Z Corporation उसका लाइसेंस दे दिया। नाउ अब और बहुत सारे लोग उसको कमर्शलाइज भी कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ देम आर दी 2 स्टेप
process that require the infiltration after the build. Okay, तो इसमें क्या होता है कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है that require the infiltration, इसको infiltration की रिक्वायरमेंट रहती है ओके बिल्ड के बाद. सो स्पेशली मेटल प्रोसेस डिलीवर अ सॉर्ट ऑफ ग्रीन पार्ट. तो जो आपके जितने भी मेटल प्रोसेस हैं वो बेसिकली आपको ग्रीन पार्ट देते हैं. ओके, ग्रीन पार्ट का मतलब यू जस्ट रिक्वायर्ड सम पोस्ट प्रोसेसिंग ऑन दैम, मतलब पार्शियली मेल्ट प्रोसेस हैं. सो दैट has to undergo thermal debinding and sintering to achieve their final, you can say, the properties, and the commercialized machines made by the JED Corporation, Prometal and the Voxel JED. Okay, तो हम इनके बारे में बात करेंगे आज कि क्या बेसिकली JED कॉर्पोरेशन के पास है, क्या प्रोमेटल्स ने बेसिकली डेवलप किया है और क्या वॉक्सेल जेड है, हाउ दे आर जस्ट डिफरेंशिंग फ्रॉम ईच अदर. ओके, so the process deliver a kind of a green part that is dimensionally stable but need infiltration to achieve the solidity. तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इन्फ्लिटेट करना पड़ता है ताकि आपका जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट सॉलिड हो जाए. द पार्ट रिमेन इन द पाउडर बेड अंटिल द बिल्ड प्रोसेस इज फिनिश्ड. जब तक कि आपका बिल्ड प्रोसेस पूरा फिनिश नहीं हो जाता तब तक ये पार्ट क्या बेड बेसिकली पाउडर से पूरा ढका रहता है. ओके, एंड इट इज स्टेबलाइज बाय द सराउंडिंग पाउडर एंड देयरफॉर डू नॉट रिक्वायर. तो यहाँ पे आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है बिकॉज आपका बेसिकली क्या है, यू जस्ट हैव अ पाउडर ओवर हियर. आपका बेसिकली यहाँ पे पाउडर है, फिर बाइंडर आया एक. ओके, फिर पाउडर. तो यहाँ पे पाउडर इज ऑलरेडी बीइंग स्टेड ओवर देयर ऑन दैट बेड. आपका जो पाउडर है वो वहाँ पे ऑलरेडी स्टे है. तो आप अगर ओवरहैंग भी बनाना चाहते हो तो आप वहाँ पे बना सकते हो उसको. फिर उसके बाद आप उस पाउडर को रिमूव कर दीजिए बाय यूजिंग सम वैक्यूम क्लीनर. आप उसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं. ओके, then the lower part of the machine contains the build chamber and carries the powder, and it is designed very much like a laser sintering machine with a movable piston to adjust the layer and the roller of the recoating. ठीक है, तो जैसा हमारा सेंटरिंग में होता है वैसे सेम आप यहाँ पे रिकोटिंग मूवेबल पिस्टन की तरह आप यूज कर सकते हो. एंड द प्लॉटर डिवाइस विद अ कमर्शियली प्रिंट हेड as known as the 2D office printer is mounted on the top. It travels over the build area and print the binder onto the powder according to the actual contour. तो बाइंडर आपका वहीं पे जाएगा जहाँ पे आपने कंटूर बेसिकली बनाया हुआ है. जहाँ पे आपकी लेयर का कंटूर है, जहाँ बेसिकली आप पाथ फॉलो करना चाहते हो, उसी पाथ को बेसिकली आपका बाइंडर फॉलो करेगा. पूरे पे आपने बेसिकली पाउडर बिछाया हुआ है लेकिन बाइंडर जो है वो उसी प्रोसेस को बेसिकली वहाँ पे जाएगा. ओके, उसके बाद आप फिर एक लेयर बिछा दोगे, फिर आपका बाइंडर जाएगा, फिर ऐसे आप बेसिकली प्रोसेस इसको बेसिकली 3D कंपोनेंट को बना पाओगे. ओके, सो इन कॉन्ट्रास्ट टू सेंटरिंग द प्रोसेस रिक्वायर नाइदर प्री हीटिंग नॉर द सील्डिंग गैसेस. तो ना तो आपके यहाँ पे कोई प्री हीटिंग की रिक्वायरमेंट है और ना ही आपको यहाँ पे कोई सील्डिंग की रिक्वायरमेंट है. ओके, बट यू विल गेट द ग्रीन पार्ट ओवर हियर. दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज कि हम लोगों को क्योरिंग करनी पड़ती है इसकी. ओके, तो स्टार्ट लाइक पाउडर एंड द प्लास्टिक सिरेमिक्स क्वालिटीज आर अवेलेबल टू मेक द पार्ट्स and even shells for investment casting. Okay, so as the binder can be colored, आप यहाँ पे binder को color भी कर सकते हो. Continuously colored can be made in the same way colored pictures are printed in the 2D. जैसे आप 2D में देखते हैं color pictures, वैसे ही आप यहाँ पे अपने binders को color देके आप उस पूरे part को color कर सकते हो. Okay, the coloring even of the texture like design is unique selling of this process. आप यहाँ पे देख भी सकते हो. You can just see over here in these figures. Okay, so typically parts are the concept models. They can be monochromatic or continuously colored. Okay, now you can just see कि आपका जो सरफेस क्वालिटी है दैट इज रफ कंपेयर टू द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. अगर हम पॉलीमराइजेशन से इसको बेसिकली कंपेयर करें तो यू विल सी कि आपकी जो सरफेस क्वालिटी है वो थोड़ी कम है बट कैन बी इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली बाय द मैनुअल प्रोसेसिंग. आप इसकी मैनुअल कोई सरफेस ट्रीटमेंट करके आप यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यू आर हैविंग सम यू कैन से द इनिशियल पार्ट, आपने इसको फाइनल पार्ट देने के लिए इसको रिमूव किया है. बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसकी सरफेस क्वालिटी और यहाँ पे इसकी सरफेस क्वालिटी, तो वो बहुत ही कम सरफेस क्वालिटी हमको यहाँ पे मिलती है रेदर देन आफ्टर दिस मैनुअल. ओके, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं अपनी सरफेस क्वालिटी को. नाउ द प्रो मेटल्स कैसे जेड कॉर्पोरेशन से अलग है. द मेटल प्रिंटिंग प्रोसेस यूजेस द मेटल इन द मेटल सिरेमिक पार्ट. ओके, बाय बाइंडिंग द पाउडर वाया माइक्रो ड्रॉपलेट्स. वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स यूज करते हैं. देन कैसे डिफरेंट है, द प्रोसेस रन ऑन अ मशीन कॉल्ड R1 रिजेंबल द बेसिक प्रोसेस बट द यूजेस आर डिफरेंट रिकोटिंग एंड लेवलिंग सिस्टम. वहाँ पे आप डिफरेंट रिकोटिंग और लेवलिंग सिस्टम यूज कर रहे हो. ओके, रिकोटिंग के इनका सेम वो प्रोसेस नहीं है जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द
जैसे कि हम लोग सिंटरिंग में यूज़ करते हैं, ब्लेड से हम लोगों ने रिकोटिंग कर दी या फिर रोलर से रिकोटिंग कर दी, तो वो इनका बेसिकली प्रोसेस नहीं है। और यहाँ पे एक एडिशनल हीटर होता है टू एश्योर एन इवन कंसिस्टेंसी ऑफ द पाउडर बेड एंड द पार्ट। ओके, तो सब्सिक्वेंट थर्मल प्रोसेस प्रोवाइड द पार्ट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि आप यहाँ पे एक एडिशनल हीटर यूज़ कर रहे हो, दैट्स वाई यू आर हैविंग द स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी इन योर पार्ट। ओके, नाउ the sand printing machine commercialized as a S print by the Pro Metal RTC, and it is a part of a family of the machine designed to produce the complex core from the foundry sand. Okay, and the reproducible manufacturing of the complex core increased the productivity of the sand casting, not just for the prototype and test casting but also for the production. The big machine is capable to feed a production line and must be regarded as a foundry machine. अगर आप लोग बड़ी मशीन की बात करेंगे इसकी, तो इट विल कैपेबल टू फीड अ प्रोडक्शन लाइन, तो वो आपकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको फीड करने में बेसिकली हेल्प कर सकती है, बिकॉज यू कैन मैन्युफैक्चर मैनी पार्ट्स ओवर हेयर। ओके, देन वॉक्सल जेट कैसे अलग है? द plastic printing process based on the 3D printing principle was developed by this voxel jet printing. The company offers a family of the printers. You can just see कि क्या build volume है इनका basically. They are having the very high build volume. Even VX800 is having the build volume of 850 cross 450 cross this 500 mm. So you can just see a very huge build volume they have. The standard layer thickness is 0.15 mm and ranges down to the 0.08 mm. As you can see, the main element is the high performance multi nozzle print head they have with the 768 nozzles. तो इनका जो बेसिकली फंडा है वो थोड़ा सा अलग है जेड कॉर्पोरेशन. दे आर हैविंग अ वेरी मल्टी नोजल प्रिंट with them. Okay, so that are mounted in the 6 simultaneously operating printing module. तो उन्होंने कुछ अलग से बेसिकली उसका मॉड्यूल बनाया हुआ है जहाँ पे कि आपकी 768 नोजल्स लगी हुई हैं, तो वो बेसिकली आपको प्रिंट करती हैं. ओके, सो दे आर हैविंग एज दे आर हैविंग वेरी हाई बिल्ड वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप बेसिकली मास प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकते हो. ओके, एज यू कैन सी दिस इज बेसिकली द फिगर जो कि यू कैन जस्ट सी वेरी हाई कॉम्प्लेक्स फिगर इज दिस, जो कि इन्होंने डेवलप की है वॉक्सल जेट वालों ने. ओके, एंड ऑलमोस्ट ऑल एक्सीडिंग पाउडर कैन बी रीयूज्ड आफ्टर द बिल्ड. आप जितना भी एक्सीडिंग पाउडर है उसको आप रीयूज कर सकते हो. एंड द मशीन वर्किंग विद द PMMA प्लास्टिक एंड अ सुटेबल सॉल्वेंट टाइप बेंडर, okay, directly make the plastic part. So they can be used as a functional prototype but also provide very good lost masters for precision casting because of the low amount of residual ashes. तो आप इसके बेसिकली जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट दी इनडायरेक्ट प्रोसेस हम लोगों ने पढ़े थे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, इसके मोल्ड का बेसिकली यूज़ कर सकते हो जो आपने इससे डेवलप किया है उसको, ताकि आप लोग बहुत सारी कास्टिंग इससे बना सको. ओके, तो यू कैन जस्ट यूज़ द मोल्ड्स ऑफ द वॉक्सल जेट इन द इनडायरेक्ट वे. ओके, so this is whole about the, you can say, sintering, melting and this 3-dimensional printing. We will just see in the next lecture about you can say this how the other process like the bioplotter, aerosol printing will happen. Okay, so thank you so much for this today lecture. So thank you.